Hello everyone, this is Deepa. Students, I'm again here with the same chapter, chapter 4 of geography, that is agriculture. Here you can see some of the agriculture activities and farming of sunflower, brinjal farm and rearing livestock also. Here you can see the inputs and processing of and outputs of the agriculture where we are as input we have to put seed, fertilizer, machinery, labor, and as work we have to do what? Plowing, sowing, irrigation, weeding, harvesting, and these are the outputs. And whatever the crops and whatever we are getting from the farming, that is output of that. Here we have seen the different kinds of cultivation: horticulture, agriculture, sericulture, viticulture, and pisciculture. I hope you have learned about these things which I have discussed earlier in my previous videos. So we'll start from discussing about types of farming, in which we have seen some of the categories of farming like subsistence farming and commercial farming. Yesterday I have explained about subsistence farming wholly and further classification of this farming, as we have learned intensive subsistence and primitive subsistence farming, and after that we have gone through the shifting cultivation and nomadic cultivation, where we have learned that subsistence farming is done by the farmers to meet the needs of farmers family, and here the low levels of technology is used by the cultivator, and the purpose behind is to just fulfill the demand of their family, and they are working for providing facilities to their family only. They are working for their livelihood, we can say. There is no uh, there is a no purpose for earning more and more money. And here we have seen intensive subsistence farming, in which peoples are using simple tools and more labors. Traditional methods of cultivation is used by the cultivator. And here we have seen the shifting cultivation and nomadic, in which we have learned the shifting cultivation is known as slash and burn agriculture, and how it was shifted by the cultivator, this we have learned. And about nomadic herding, we have learned that in this type of farming, herdsmen move from one place to another place for uh, for herding of their animals, we can say rearing of animals, for the fodder and providing water and fodder facility to the animals. And mostly people used to rear sheep, camel, yak, and goats. So now we'll discuss about commercial farming. This is today's topic, student. Commercial farming, it means this is done for earning more profit, earning more money. Using for commercial purpose, we can say it was done by the cultivator for getting more and more money. So crops are grown and animals are reared for sale in the market. Mostly their purpose to sell in the market, that is for commercial purpose. While in subsistence farming, crops are grown mainly for the farmer's family's needs. The area cultivated and the amount of capital invested is large. Whereas we can say in subsistence farming, the capital which is invested by the cultivator is very less. Most of the work is done by machine, and in subsistence farming most of the work is done by the cultivator and their family members. Students, whenever we will talk about commercial farming, the further classification of these are plantation agriculture, mixed farming, and commercial grain
फार्मिंग। मोस्टली इफ़ विल टॉक अबाउट यूएसए ना, तो वहाँ पर मेज़ वगैरह को कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है ना। अगर हम शुगर केन प्लांटेशन वगैरह भी करते हैं तो भी इनका कमर्शियल पर्पस से किया था। एक बहुत बड़े जो हमें कहना चाहिए कि जो अमाउंट ऑफ कैपिटल जो यूज़ की जा रही है वो भी बहुत ज़्यादा लार्ज है, और जो एरियाज़ यूज़ किए जाते हैं कल्टीवेशन के लिए वो भी बहुत ज़्यादा लार्ज होते हैं। सो लेट्स सी कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। In this crop are grown for commercial purpose. Wheat and maize are common commercially grown grains. It is mostly practiced in the temperate grassland of North America, Europe, and Asia. These areas are sparsely populated and with large farms spreading over hundreds of hectares. Severe winter restrict the growing season and only single crop is grown. This distinctive type of agriculture known as commercial grain farming was developed in USA. It is a type of agriculture that is largely dependent on mechanization. It started with the invention of farm machinery in the early 20th century. The use of machinery allows farmers to cultivate grains on a large scale. So let's see students. जो कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग होती है उसका मेन पर्पस तो हम जान ही गए कि कमर्शियल पर्पस होता है। वीट एंड मेज़ को कॉमनली कमर्शियली ग्रोन ग्रेन कहा जाता है, और जो ये वीट और ग्रेन को मोस्टली बेनिफिट के पर्पस से ही लोग ग्रो करते हैं। एंड मोस्टली ये जो टेम्परेट ग्रासलैंड एरिया है जो हमारा नॉर्थ अमेरिका का, यूरोप एंड एशिया का, इसमें इस एरिया में इसे ज़्यादा ही ग्रो किया जाता है टेम्परेट ग्रासलैंड्स में। और ऐसी जगहों पे इसे यूटिलाइज ग्रो किया जाता है जहाँ पर स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया हो, मतलब कि कम जनसंख्या हो, जहाँ पर लोग विरल हो, मतलब कम जगह पर लोग पाए जाते हों, यानी कि हम कह सकते हैं कि जहाँ पर ज़्यादा जनसंख्या ना हो। और क्या होता है इसमें कि सैकड़ों हेक्टर के बड़े बड़े फार्म्स होते हैं जहाँ पर बहुत ही कम आबादी वगैरह है, तो बड़े बड़े फार्म्स मिल जाते हैं। वहाँ पर अगर बहुत अधिक ठंड हो रही होती है, बहुत ज़्यादा, तो ये क्या हो करती है, इनकी ग्रोइंग के को थोड़ा सा अफेक्टेड करती है, और ये क्या करती है, एक ही फसल उगाई जा सकती है। इसमें क्या करते हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग नहीं करते हैं इस टाइप की फार्मिंग में। और इसका इन्वेंशन लगभग फार्म मशीनरी इन दिस अर्ली 20th सेंचुरी में हुआ। 20th सेंचुरी में इसको हम लोगों ने इन्वेंट किया, और तब से इसे कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग को करना स्टार्ट किया। और ये मोस्टली डिपेंड है मशीन्स के ऊपर, मोस्टली क्योंकि बड़े बड़े फार्म्स होते हैं, उसमें लोग नहीं ज़्यादा इन्वॉल्व किए जाते हैं, मशीन्स के थ्रू ज़्यादा काम कराया जाता है। द यूज़ ऑफ मशीनरी अलाउज फार्मर्स टू कल्टिवेट ग्रेन्स ऑन अ लार्ज स्केल, तभी क्योंकि इतने बड़े बड़े फार्म्स होते हैं उस पर मशीन्स के थ्रू ही लोग कल्टिवेटर्स जो हैं कल्टिवेशन ईजीली कर पाते हैं, और ये एक बहुत बड़े स्तर पर किया जाता है, लार्ज स्केल पर। नाउ विल टॉक अबाउट मिक्स्ड फार्मिंग। In mixed farming, the land is used for growing food and fodder crops and rearing livestock. क्या होता है ये जो मिक्स्ड फार्मिंग इसको हम हिंदी में बोल सकते हैं मिश्रित कृषि। इसमें क्या होता है, जो हमारी लैंड होती है उसको यूज़ किया जाता है फॉर विच पर्पस, ग्रोइंग फूड या फिर फॉडर क्रॉप एंड रियरिंग लाइवस्टॉक, या तो फिर पशुपालन के लिए या तो फिर चारे की फसल जो कि हमारे कैटल्स का भोजन होती है, या तो फिर खुद के भोजन के लिए। इट इज़ प्रैक्टिस्ड इन यूरोप, ईस्टर्न यूएसए, अर्जेंटीना, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका। ये कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पर ये मोस्टली प्रैक्टिस की जाती है, मोस्टली प्रचलित है ये, जहाँ यहाँ के लोग उसे ज़्यादा करते हैं। A typical case of mixed farming is the combination of crop enterprise with dairy farming, that is crop cultivation with livestock farming. अब हम कह सकते हैं कि जैसे कि अब हम क्रॉप के साथ जब हम क्या करते हैं, किसी भी टाइप का दूसरा काम करने लगे, जैसे लाइव स्टॉक फार्मिंग यानी जानवरों को भी पालने लगे, कोई क्रॉप भी कल्टीवेट करें और ये भी करें, डेयरी फार्मिंग भी करें, तो इस तरह की फार्मिंग को हम मिक्स्ड फार्मिंग कहेंगे।
मिक्स फार्मिंग में बी ट्रीटेड एज स्पेशल केस ऑफ डाइवर्सिफाइड फार्मिंग। इसको हम कह सकते हैं ये एक स्पेशल केस है डाइवर्सिफाइड फार्मिंग का, मिश्रित कृषि का। ये लोग जो लोग मोस्टली फार्मिंग पर ही डिपेंडेंट होते हैं वो बहुत तरीके की एक्टिविटीज़ को इंक्लूड कर लेते हैं फॉर गेटिंग मोर बेनिफिट, फॉर गेटिंग more money from the crop production, and we can say other methods of cultivation, we can say livestock farming and dairy farming, etc. This particular combination of enterprise support each other and add to the farmers profitability। क्या करते हैं फार्मर्स की प्रॉफिटेबिलिटी इसको ऐड कर देते हैं, और ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, सपोर्ट करता है कि जब मान लीजिए कि कभी कोई फसल ख़राब हो गई तो क्या होगा कि हमारा डेयरी फार्मिंग अच्छा चल रहा है। अगर मान लीजिए कि भी डेयरी फार्मिंग में कोई प्रॉब्लम आ गई, या फिर जो हमारे डेयरी फार्मिंग में जो कैटल्स इन्वॉल्व हैं वो बीमार हो गए या उनको कुछ हो गया या कोई, तो हमारा क्रॉप प्रोडक्शन अच्छा हो गया। और हम कह सकते हैं कि रियरिंग ऑफ अदर लाइफ स्टॉक, तो उन्हें और भी तरह की फैसिलिटीज़ मिलती रहती हैं, जैसे हम बोल सकते हैं कि स्किन अवेलेबल हो जाएगी, मीट अवेलेबल हो जाएगा, तो इस तरीके से फार्मर्स की प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। द क्रॉपिंग सिस्टम कंप्रोमाइजेस ऑफ वन और मोर क्रॉप। मोस्ट फार्मर्स फॉलो क्रॉपिंग पैटर्न दैट इन्वॉल्व्स। क्या होता है कि क्रॉपिंग सिस्टम को भी चेंज करके लोग इसमें क्या कर सकते हैं, अच्छे से और बेनिफिट कर सकते हैं। मोस्टली फार्मर्स क्या होते हैं, कई क्रॉपिंग पैटर्न्स को फॉलो करते हैं। सिक्वेंशियल क्रॉपिंग की जाती है, मिक्स्ड क्रॉपिंग की जाती है, और रिले क्रॉपिंग की जाती है। अब इसमें क्या है, मिक्स क्रॉपिंग इन्वॉल्व्स साइमल्टेनियसली ग्रोइंग ऑफ 2 और मोर क्रॉप इंटरमिंगल्ड ऑन द सेम लैंड। मिक्स क्रॉपिंग का मीन्स क्या है कि एक ही पीस ऑफ लैंड पर, सेम पीस ऑफ लैंड पर हम क्या कर रहे हैं, 2 और मोर क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हैं, और एक साथ ही उसको सेम पीस ऑफ लैंड पर ग्रो कर रहे हैं। इससे क्या होता है कि डिफरेंट टाइप्स की क्रॉप हमारे पास अवेलेबल हो जाती हैं। नाउ द थर्ड कैटेगरी इज प्लांटेशन एग्रीकल्चर, जिसको हम एक तरीके से बोल सकते हैं रोपण कृषि। ये एक कमर्शियल फार्मिंग का ही एक टाइप है। इसमें मोस्टली क्या होता है कि टी, कॉफ़ी, रबर, बनाना, कॉटन, इस तरह की फसल होती हैं, इसको ग्रो किया जाता है। सो लेट्स सी, प्लांटेशन आर अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग सिस्टम वेयर सिंगल क्रॉप ऑफ टी, कॉफ़ी, sugar cane, cashew, rubber, banana or cotton are grown. Large amount of labor and capital are required. The produce may be processed on the farms itself or in nearby factories. The development of a transport network is essential for such farming. Major plantations are found in the tropical region of the world, rubber in Malaysia, coffee in Brazil, tea in India and श्रीलंका। हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि इसमें भी इस टाइप की प्लांटेशन यानी कि रोपण कृषि में भी मोस्टली फार्मर का क्या उद्देश्य होता है कि मोर एंड मोर अर्निंग करना, और सिंगल क्रॉप को ग्रो किया जाता है, जैसे कि टी, कॉफ़ी, शुगर केन, केशियो, रबर, बनाना को, और लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर रिक्वायर्ड होता है, और कैपिटल भी बहुत ज़्यादा इंक्लूड की जाती है। इसमें क्या होता है, जो प्रोड्यूस होता है मे बी प्रोसेस्ड ऑन द फार्म इटसेल्फ और इन नियर बाय फैक्ट्रीज। जो भी चीज़ें जो ग्रो होती हैं वो क्या होती हैं, आसपास के ही जो कारखाने वगैरह होते हैं उसमें जा कर के प्रोसेस करके मिल जाता है। जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो प्रोसेसिंग खेतों से ही स्टार्ट कर दी जाती है या तो फिर पास के कारखानों से की जाती है। और इस तरह से जो कल्टीवेशन किया जाता है उसमें क्या परिवहन, जो हम कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है, ये भी एक बहुत बड़ा इसका जो डेवलप्ड ट्रांसपोर्टेशन फैक्टर है वो बहुत ज़रूरी है कि अगर ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बहुत अच्छा होगा तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो पाएंगे। अब हम उसमें कौन कौन सी मेजर प्लांटेशन है, जिन जगहों पर काफ़ी ज़्यादा प्लांटेशन किया जाता है वो ट्रॉपिकल रीजन्स के रीजन है, जैसे कि ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ वर्ल्ड, रबर इन मलेशिया में रबर बहुत ग्रो की जाती है,
coffee in Brazil and tea in India and Sri Lanka. मलेशिया में रबड़ और ब्राज़ील में कहवा, इसको हिंदी में बोलते हैं कॉफ़ी को कहवा, और भारत और श्रीलंका में चाय, इसको बहुत ग्रो किया जाता है. मोस्टली ये उष्ण कटिबंधीय प्रदेश होते हैं, ट्रॉपिकल रीजन्स होते हैं. So this is all about the classification of commercial farming. These are the three types of commercial farming, that is plantation agriculture, mixed farming and commercial grain farming. So thank you very much, students. Here you can see the diagram of coffee plantation and tea plantation and rubber plantation and sugarcane plantation. I put one picture for you. Here you can see. So that is all about your commercial farming. Thank you so much for patience hearing, students. I'm ending this video with a good note. What a teacher writes on the blackboard of life can never be erased. Thank you.